Okay. So let's start with from the basics, ratio, proportions, and variation. So the first term that we are studying is known as ratio. So what is a ratio? How do we define a ratio? Anybody? What is a ratio? रिलेशन, वो तो रिलेशन हो जाता है बिल्कुल ही, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। हाँ ठीक है, कुछ 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 नहीं से तो अच्छा है, कुछ थोड़ा बहुत तुक्का तुम्हारा ही है, बाकी हाँ भाई क्या कहते हैं, व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो इज अ कंपैरिजन, इट्स अ कंपैरिजन, नो इट इज नॉट रिलेशन, इट इज ओनली कंपैरिजन। वही नहीं, अलग है कुछ भी मतलब। हाँ, क्यों हो गया? क्वांटिटेटिव रिलेशन तो बहुत तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए इज इक्वल टू बी, डज देयर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी? तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं है क्या, ये वाला है? ओके, 1:1 कैसे? ए इज इक्वल टू बी तो 1:1 थोड़ी ना होगा। अच्छा वैसे कह रही है, ए बाई बी। अच्छा ए बाई, ये कह रही है। हाँ ओके चलो मान लेते हैं भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हैं हम बट एनीवे, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है, बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, वैसे ये भी हो सकता है बिटवीन टू और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, हैविंग सेम यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट्स जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से 2:3:4, right? So what is the basic meaning of 2:3:4? That means if this is 2, only then this is 3, and only then this is 4. But 2 what? Let's say it is 2 centimeters, say for example, then this will always be 3 centimeter, this will always be 4 centimeter. If it is 2 kg, it is 3 kg, it is 4 kg. So the important point is that it is comparison of two or more quantities having same units. That is important. The units must be same, only then you are able to compare two or more quantities, is defined as a ratio. Now you see, when you say 2:3 for example, now this thing can also be written as 2/3, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, but then 2/3 is also known as fractions. If you have, I'm sure you have studied this, right? Fractions. Now here we are saying it is a ratio, and here we are writing in the form of a fraction. So the question is, what is the difference between a ratio and a fraction, and how do we distinguish between these two? Or is there something, by which we can differentiate between these two ideas? Now, for all practical purposes, 2:3 can always be written as 2/3 without any flaw. This is technically a correct statement. However, when you say it is a fraction, it has a different meaning. But when you say it is a ratio, it has a different meaning. Now, for example, let's say we were to have a loaf of bread which contains, let's say, which is distributed in 5 equal parts. मान लेते हैं मेरे पास ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 पार्ट. So there's a piece of bread which is equally distributed in 5 parts. Let us say the 2 parts contain cherry. इसमें cherry है. And this does not contain cherry, the remaining 3 parts. Now, if I were to ask you this question, what fraction of bread contains cherry? You would say 2/5 contains cherry. That means this 5 is nothing but the total portion, total parts. And this is nothing but one of those parts of the
टोटल पार्ट, तो टोटल 5 यूनिट्स हैं, उसमें से हम 2 का रेफरेंस ले रहे हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रेड विच डज नॉट कंटेन चेरी? 3/5. So out of 5 parts, which is total, 3 parts does not contain cherry. Now, if I were to ask, what is the ratio of the bread containing cherry to not containing cherry, what would be the answer? 2 portion contains cherry and 3 portion. Now we write something like this, for example. Now, if we are talking about a ratio, then this portion, which is known as antecedent, if it is a ratio, the first term is known as antecedent, is representing a part of some whole. And this is also representing part of the same whole, जिसकी हम ऊपर का जो reference है वही reference है, यानी कि दोनों parts हैं. But if this 2/3 were to be a fraction, then this would be part and this would be total parts whole. समझ में आ रहा है? यानी लिखने में, मैथमेटिकली उसको सॉल्व करने में, उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है. वो आपको देख के समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है या रेशियो की बात कर रहा है. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ basic understanding, basic difference between a ratio and a fraction. So that is why it is always said it is a comparison of 2 or more quantities. हम comparison बोलते हैं because it is in reference to other part. But fraction means एक पूरे टोटल में से उसमें से हम एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं. Of course, we will study this in number systems, different types of fractions. In fraction, this is known as numerator and this one is known as denominator. But in a ratio, this is known as antecedent and this is known as consequent. तो वो मेरा एंटीसीडेंट है, मेरा कॉन्सिक्वेंट है. और अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में हमें समझ में आता है. ठीक है, द वे यू कंपेयर फ्रैक्शंस इज द सेम वे वी कंपेयर रेशियो ऑल्सो. जैसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, द वैल्यू इज लेस देन 1, वैसे ही रेशियो इज न्यूमरेटर इज लेस देन 1, denominator is more than 1, हम उसको, या antecedent is less than the consequent, it will always be less than 1. That's how you understand this ratio and fraction. ठीक है, should not be a problem in this, कोई तो problem नहीं यहाँ पे. Okay, अब हम इसमें देखते हैं some types of questions that can be asked. Now, normally, let us say there is a number like 50, which needs to be split in the ratio of 2:3:5, say, for example. If there's a number needs to be split in the ratio of 2:3:5. So there are 2 ways of handling this question. One of the ways of handling, let us say this person is A, this person is B, this person is C. One way of doing it is, if in totality there were 10 parts, A would have got 2 parts. 2:3:5, 10 में से. But are we having 10? How many are we having? 50. So if you want to find out of 50, so you can simply multiply, that means out of. तो फिर in another words you can say 2 out of 10. So अगर 50 होता तो मेरे को कितना मिलता? यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, तो मेरा आंसर आ जाता 2 into 50 divided by 10. It is one and the same thing. So A would have got this portion. B would have got 3 parts out of 5 parts. Sorry, 10 parts. और total कितने? 50. And C would have got 5 parts out of 10 parts out of 50. So that's one way of understanding this question. So generally this explanation in books is given as, if A is split in the ratio of B is to C is to D, then this would have B upon B plus C plus D into A. C, this would be C plus B plus C into A. And this portion will have D upon B plus C plus D into A. That's how you would be given. So I'm sure you will be able to solve these kinds of questions where you are asked to split a number into a particular ratio, right? Now, the second way of understanding this question, the second approach to this question would be 50 when divided in the ratio of 2:3:5. So see, this is 2, this is 3, this is 5. The ratio is 2:3. This number could have been 200, this number could have been 300, this number could have been 500. When you would have taken a ratio, it would still be
2:3:5. Now it is a possibility to have been 20, it could have been 30, it could have been 50. The ratio still would have been 2:3. So that means whenever we are talking about ratio and we do not know the actual number, the way you assume an actual number is 2 multiplied by some multiplying factor, in this case x. The second would be 3x and the third would be 5x. So what is this 5x? X is a multiplying factor. It is that value that would have got cancelled from the original value when we were taking the ratio. So since we don't know what is the value, we assume the value to be x, and this becomes 2x, this becomes 3x, and this becomes 5x. Now this 2x, 3x, and 5x are actually part of this original number 50. So if you club these numbers together back, it must give you the original value, which is 50. So now we know that 10x is equal to 50 or x is equal to 5. Now we have the multiplying factor here. So this becomes 5 into 2, 10. This becomes 15 and this becomes 25. And 10, 15, 25 would give me the answer. Now some of the times, some of these questions we are required to handle the second method. Some of the times we are required to handle the first method. Now, let's say, for example, if I were to ask you this question, let's say, a number is split into two parts such that the ratio of the two number is 3:5. The difference between the two parts is 160. What is the original number? देखते हैं. क्या क्या है? कैसे किया इसको? X value. It makes sense using the X1. It does not make much sense for us to actually, use that method 3/8 into X minus 2/8 into X. So this is easy, that this is 3x, this is 5x, the difference is 2x. 2x is given to me as 160, so x will be 80. So the multiplying factor happens to be 80. The original number would have been 8x. Because एक number को टुकड़े में तोड़ा था ना, तो एक portion 3x, दूसरा portion 5x. The original number would have been 8x. So x is equal to 80. So 8x is equal to 80 into 8 is 640, and we would get the answer easily. So that's how we will be able to solve this question, let's say here. Okay, now let's say I ask you this question. You are carrying a dozen eggs and you fell down. Some of the eggs broke and some of the eggs did not. Which of the following is not possible for broken eggs to unbroken eggs?
अच्छा, क्यों? ओके, हाँ, डिविजिबल नहीं है। किससे? 6 से डिविजिबल है, क्यों नहीं है? और किसी का कोई आंसर? नहीं, 1:4, हाँ भाई, क्यों? तुम्हारा क्या कहना है? आया नहीं, हाँ भाई, क्वेश्चन बताओ क्या है पहले। बता बता क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन समझाओ मेरे को। हम्म हाँ, तो एक डजन का क्या मतलब होता है? 12। अगर 12 है, अगर मैं इसको तोड़ना और ना तोड़ना 1:1 में स्प्लिट कर सकता हूँ इसको मैं? कैसे? बिकॉज दिस विल बिकम 1/2 इंटू 12 एंड दिस विल बिकम 1/2 इंटू 12, तो 6 पॉसिबिलिटी है। ओके, कैन यू ब्रेक दिस इन द रेशियो 1:3? क्योंकि ये बनेगा 1/4 इंटू 12 और ये बनेगा 3/4 इंटू 2। तो बेसिकली 12 इज डिविजिबल बाय 4 हो सकता है। अच्छा, क्या ये बनेगा 1:4 में? 1:3, 1:2 नहीं होता है। अगर 12 अंडे तोड़ने तो 1/5 इंटू 12 और ये 4/5 इंटू 12। तो क्या ये कर सकते हैं? कितना बन जाएगा? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और ये कितना बन जाएगा? 2.4 इंटू 4, तो ये 6 बनेगा, 9.6। इज इट पॉसिबल टू डू? So basically the number needs to be divisible by the sum of these independent terms. समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सब कुछ पॉसिबल है। ये एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, जब आप बोलें कि सर हमारी स्पेशल मुर्गी है, फ्रैक्शनल अंडे देती है, आपको क्या पता, आपने देखे ही नहीं होंगे। तो इस केस में एजम्पशन हमारी क्या है कि अंडा जो है वो इंटीग्रल है, या तो वो फूटेगा और या नहीं फूटेगा। सो देयरफॉर द कंप्लीट डिविजिबिलिटी मींस there is nothing remaining, it is completely integral value, so that is assumed here. ठीक है, तो now in this case we are using that method 1 by total into that number. तो पिछले वाले केस में हमने x वाला यूज किया था, इस वाले हमने केस में 1 by total वाला यूज किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड अच्छा है या ये बेटर है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्वेश्चन वी विल हैव टू चेंज द अप्रोच दैट वी आर यूजिंग फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ठीक समझ में आ रही बात है यहाँ तक? ओके, नाउ देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी स्टडी अलोंग इन दिस, यू नो, in ratios. Say for example I am having a ratio A:B, or let's say 2:3. There is something known as duplicate ratio. Now if somebody asks you what is the duplicate ratio of A:B, what is the answer? 6:9, 4:6, डबल कर दिया इसका, इसको डुप्लीकेट बोलते हैं। ठीक है, जो आप मेरे को बता रहे हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब मान लो A:B है, अपन इसको 2A:2B कर देते हैं, यानी कोई कॉमन फैक्टर है। जैसे हमने 2:3 एग्जांपल लिया था, तो आप कहते हैं सर इसको 4:6 कर दो। इन इफेक्ट व्हाट यू आर डूइंग इज 2 into 2 upon 2 into 3. So you are multiplying both antecedent and consequent by a particular value. Of course, it's not going to change our ratio, but then this ratio is known as an equivalent ratio. If there is some common factor, it is known as equivalent ratio of
2:3. यहाँ पे 4:6 is equivalent ratio of 2:3. So what is 2:3 known as? If there is no common factor in both the terms, if there is no common factor in both the terms, then it is known as standard ratio. हम उसको क्या बोलते हैं? Standard ratio. ठीक है, नो कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड रेशियो. ऊपर डुप्लीकेट, नीचे इक्विवेलेंट, स्टैंडर्ड. ठीक है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो हमने पढ़ा है वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो भी होता है. लॉजिकली क्या होता होगा? हैं? ए क्यूब इज टू बी क्यूब. ठीक है, ऐसे ही हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो. यस, गुड. रूट ए इज टू रूट बी. रूट मीन्स आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. कुछ नहीं लिखा है तो टू मतलब है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मिलेगा. क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी. दिस इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. समझ में आ रहा है? तो डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इक्विवेलेंट रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो, ये हमारा जनरल नॉमेनक्लेचर होता है. एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5. फॉर एग्जांपल, मैं क्वेश्चन की तरह समझाता हूं इसको. फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5. मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि हमें क्या निकालना है? कंपाउंडिंग निकालनी है, कंपाउंडिंग ऑफ अ रेशियो. सो व्हाट इज अ कंपाउंडिंग ऑफ अ रेशियो? है कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है बस, ये आंसर है. So if you know, it's hardly a question, but if you don't know, then we are in trouble. ठीक है, so compounding means multiplying of the two ratios. That's how it is to be done. ठीक है, ठीक है, ओके. और रेशियो में हाँ, मतलब these are terminologies which are used, which is required. Then when we study ratio, we frequently use the term proportion also. Always you see we use the term ratio and proportion. So what is this proportion? क्या होता है proportion? टिपिकल इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग बता रहे हो आप मुझे. ओके, हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है, होता गया है तो फॉर्मूला सब बता दिया आपने मुझे. ओके, बट यू आर राइट. आई मीन इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट expressing equality of two ratios. I mean, that is what is a proportion. So it's a proportion is a statement expressing equality of two ratios. Now, for example, जैसे A is to B है मान लेते हैं, एक रेशियो है, और एक C is to D है मान लेते हैं. ठीक है, दो रेशियोज हो गई. एक ऐसी स्टेटमेंट जो बोले कि ये बराबर है, एक स्टेटमेंट जो ये बोले कि ये बराबर है. दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज A is to B. ये जो सिंबल है इक्वल टू की जगह ये 4 बिंदी लगा देना. दिस इज ए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये सब बराबर है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A by B इज इक्वल टू C by D भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इक्वल टू हमने अभी भी किया था कि हम रेशियो A is to B को A by B भी लिख सकते हैं. मैथमेटिकली दिस इज नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग इट. It is just that we need to understand the essence of it. Now, if you are able to write something like this using a simple equation, we may say A into D is equal to B into C.
just a simple linear equation. Now, if you observe A and D, these two values are far off from each other, and therefore it is known as extreme values. इसको क्या बोलते हैं? Extreme values. And since these two values are closer to each other, it is known as mean values. Right? Now, here, if you see A into D is nothing but product of extremes is equal to product of means. The product of extremes is equal to product of means. I mean, that's the relationship that she was saying कि भाई A और जो D का प्रोडक्ट है वो B और C के बराबर. तो कहाँ से आ रहा है? It is just coming from the basic assessment, basic statement that it is it is a statement of equality between two ratios, and that's the representation. Right. Now, what we need to know, few more things in this. Let's say we are writing this A is to B is proportional to, let's say, C is to D. Now, there are certain nomenclature. Once again, we need to know this A is which proportion? It is known as first proportion. इसको क्या बोलते हैं? First proportion. B को क्या बोलेंगे? Second proportion. Very good. C को क्या बोलेंगे? Third proportion. और इसको क्या बोलेंगे? ठीक है. अब what is a possible question in this? Three proportions three values in a given proportion is 3, 4, and 5. Find the fourth proportion. How do we get that? फिर हमें क्या पता कि फर्स्ट क्या रखें, सेकंड क्या रखें, थर्ड क्या रखें? तुमने कैसे ज़ूम किया कि चौथा को निकालना है तो तुमने एक्स मान लिया, बिल्कुल ठीक है. इसको कैसे माना? ना मैं क्यों लगाऊं? मैं नहीं लगाता. एज्यूम करना है और रिस्पेक्टिवली ही करना पड़ेगा. वो सोच सही है आपकी. If it is not mentioned in the examination or the question, it will not be mentioned by the way anyways. You will have to assume the order in which the values are written to be first proportion, second proportion, and third proportion. So in this case, the first proportion will be 3 is proportional to 4. So is proportional to 5 is to x. So you'll multiply these two, product of extreme is equal to product of means. So you will have 3x is equal to 20. So x is equal to 20 by 3. मैं क्या किया इसमें 60 कहाँ से आ गया था? अच्छा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन बोल दिया होता फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फिर क्या होता आंसर? कैसे? अब थर्ड अननोन है तो x कहां जाएगा? थर्ड में. तो फर्स्ट बनेगा ये, सेकंड बनेगा ये, इज प्रोपोर्शनल टू x इज टू 5. ठीक, इन दोनों का ये बनेगा. तो 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाय 4. उसी तरीके से अगर फर्स्ट पूछ लेता तो क्या करते? फिफ्थ को और फर्स्ट को x. जो भी नहीं पता उसको हमने x मान लिया एंड अकॉर्डिंगली हमने बाकी वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली के हिसाब से डाल दिया. सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय सेल्फ. एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. समझ में आ रही बात? ओके. नाउ लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन,
So here say, let's say I am saying, हो गया भाई, बताओ क्या करोगे? So two values in a proportion are 3 and 4. Find third proportion. कैसे करें? ओके, चलिए लेट मी आस्क दिस. मान लो मैंने कहा A is to B is proportional to B is to C. फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन सा है? अच्छा पहले बताओ, इसमें करते हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन सा है इसमें? A B B C में A, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या है? ये भी सेकंड, ये भी थर्ड है. अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें तीन ही प्रपोर्शन के बारे में बात कर रहा है, और प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन में 4 टर्म्स हैं, और उसने हमें कितने के बारे में बात करी? 3. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम दैट द प्रपोर्शन इज इन कंटिन्यूअस इन नेचर. इसका नेचर क्या है? कंटिन्यूअस है. क्या मतलब? इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन. एक कैसा प्रपोर्शन है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अब ये कोई बताएगा नहीं ऑब्वियसली, जब हमें दे दिया है थ्री प्रपोर्शन, सो वी विल हैव टू अज्यूम दैट इट इज ए कंटिन्यूड इन नेचर, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन है. तो ये वाला मेरा बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड, ये भी बनेगा मेरा सेकंड, और ये मेरा बनेगा थर्ड. समझ में आ रहा है? तो अब इसको कैसे करेंगे? 3:4 is proportional to 4:x, and product of extreme is equal to product of means. So x is equal to 16/3. That is the answer. बन रही है बात? ठीक है. अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन की जगह मैंने कहा फाइंड मीन प्रपोर्शन. अब क्या करोगे? हम्म, 1:1. क्यों? बिल्कुल मीन वाला होता है. अब अननोन क्वांटिटी कौन सी है? मीन. तो मीन कहाँ आएगा? अब समझो, इसमें दो चीजें सीखने की होगी. एक, उसने हमें 3 प्रपोर्शन दिया है, इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है. उसका नेचर कैसा है? कंटिन्यूअस, यानी सेकंड और थर्ड मिलके सेकंड बनाएगा. दूसरा, उसने हमसे सवाल पूछ लिया व्हाट इज मीन प्रपोर्शन, यानी जो मीन है, जो बीच वाली वैल्यू है, वही अननोन है. तो इसका क्या मतलब? इसकी सेटिंग कैसे बैठेगी? 3:x is proportional to x:4. Product of extreme is equal to product of mean. So you have x square is equal to 12x is equal to plus minus root 12. That is the answer. ठीक है, हम इसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे. नो प्रॉब्लम्स. ओके, तो ये हमारा कुछ प्रोपोर्शनैलिटी पे बात बनती है. अब 2-3 चीजें इसमें हम और समझ लेते हैं और देखते हैं, और फिर देखते हैं कुछ और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं. सो लेट अस से, we are given something like, A is to B is to C is to D is to E is to F, let's say, is equal to 1:2 is to 3 is to 4 is to 5 is to 6. Something is given like this. So this also would mean A/1 is equal to B/2 is equal to C/3 is equal to D/4 is equal to E/5 is equal to F/6. Why would it mean something like this? Is because, since this is a ratio, the actual value could have been, 1x, 2x,
3x, 4x, 5x, and 6x. What? A would have been 1x, B would have been 2x, C would have been 3x, right? Now, if I were to represent this information in this fashion and put it equal to some constant value x, now once again I can say A is equal to 1x, B is equal to 2x, C is equal to so and so forth, and the ratio will be same. इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब ऐसे लिखने का पर्पस क्या है? वो ये है कि ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन आता है एग्जाम में. क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है which of the following is correct? Which of the following is correct? तो लेट्स से द फर्स्ट वाला है. मान लो मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 is equal to d plus e plus f upon 4 plus 5 plus 6, my first option. The second option is a plus b plus c minus d upon 1 plus 2 plus 3 minus 4 is equal to e minus f upon 5 minus 6. The third option is 1a plus 2b plus 3c plus 4d plus 5e plus 6f upon 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 is equal to a. Third, a minus b plus c minus d divided by 1 minus 2 plus 3 minus 4 is equal to c plus d minus e minus f divided by 3 plus 4 minus 5 minus 6. Which of the options is correct? चौथा या 4 लिखूं? अच्छा अच्छा ऑप्शन. ओहो चलो क्या लिखूं? कुछ और लिखूं? चल तू कहता है मैं a प्लस बी लिख देता हूं और बोल. अब 1 प्लस 2 नीचे क्या ख्याल है? x लिख दूं? फिर सही हो जाएगा. चल मैं फिफ्थ ऑप्शन और दे देता हूं, ऑल ऑफ द अबव. अब बोलो. तो इसका आंसर ये है कि सारे सही हैं. मैं तुम्हें बताता हूं कि एग्जाम में मतलब इसको लोग कैसे करते हैं और हमें कैसे करना है, कैसे हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और इसका क्या एसेंस है. मतलब समझाने का इसका पर्पस ये है कि of course you may not get this level of difficulty but once you understand you will be able to handle all kinds of questions. सब में आता है. क्लैट छोड़ दे, क्लैट में नहीं आएगा. आईपी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई. 10 क्वेश्चन आते हैं, 25% आता है हायर मैथ्स, बाकी यही आता है. ये कौन सा हायर है? थोड़ा ना हायर है, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन है भाई. अभी हायर कहाँ गए हम? हायर का मेरा मतलब है जो तुम्हारे 11th 12th वाले थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशंस. मेरा मतलब वो है. देखो मैं बता दूं, सिलेबस तो 10th का है, डिफिकल्टी लेवल नहीं है 10th की. That question will be of a higher quality. It's not the 10th CBSE board quality. So that is the difference. But the syllabus, when I'm saying, it is pretty much whatever you have studied till class 10th, 70-75% of the question will be from whatever you have studied till class 10th only, nothing beyond that. But then the questions will be slightly on the higher side of difficulty, like this one. Now, one way of handling this question could be proving LHS is equal to RHS by assuming A can be taken as 1x, B can be taken as 2x, C can be taken as 3x. For example, मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं ऐसे करना, समझाने के लिए कह रहा हूँ. मान लेते हैं मेरा LHS है ये.
LHS में मैं a की जगह 1x लिख दूं क्रॉस, प्लस b की जगह मैं 2x लिख देता हूं, c की जगह मैं 3x लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 बनेगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 6x अपॉन 6. LHS की वैल्यू क्या आ गई? x. नाउ लेट मी टेक दिस RHS. ये RHS है. नाउ D I can write 4x, E I can write 5x, C I can write 6x. This will be divided by 4 + 5 + 6. So this is nothing but 15x upon 15. This is x. So x कहाँ है? a की 1x है, b की 2x है. नहीं, कौन सा उसके अकॉर्डिंग? यहाँ यहाँ 3 होता. अच्छा, यहाँ 1 होता तो a is equal to b हो गया. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी ले लो, 10, 15, 16 ले लो, मोंकी डोंकी कॉन्की कुछ भी रख लो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. इसके सामने x है. हाँ, a x के इक्वल आ गया, बिल्कुल ठीक है. हाँ, a को x लिखा ना, ये देखो लिखा ना 1x, x का मतलब 1x, तो एक ही बात है भाई. मैंने कहा समथिंग इज x और मैंने कहा दिस इज 1x. विल इट मेक एनी डिफरेंस? है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना. एक मिनट, मैं क्लास ले रहा था अभी एक बार ना. आज कोई नहीं, बार डेट कर लेना, तो लग जाएगा तो आधा पौना घंटा लग जाएगा. ओके, मैं ये समझाना चाह रहा हूं अब, ये सारे क्यों ट्रू हैं. ये ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं और नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पकड़ते हैं. अब आप ऊपर वाली कोई भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लोगे, मतलब मान लेते हैं मैंने ये तीनों ले ली एग्जाम्पल के तौर पर, और उसके नीचे करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज ले ली. अब इसको चाहे आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो ओरिजिनल एक्स के बराबर ही आएगा हमेशा. जैसे यहाँ पे ABC लिया मैंने फर्स्ट सेकंड, उसके नीचे 1 2 3 लिया, तो इसका रेशियो हमेशा x बनेगा. फिर आपने यहाँ लिया DEF लिया और 4 5 6, इसकी वैल्यू भी हमेशा x बनेगी. अब मान लो मैंने ये लिया, ये देखो, इसमें मैंने क्या किया, ऊपर कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं किया, 1 1. इसमें मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया. इसमें मैंने ऊपर 3 नीचे 3, अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसमें 4 4 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसमें 6 6 कर दिया. अब मैंने ऊपर वाले को ऐड कर दिया और नीचे वाले को ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या आएगा? x ही आएगा. तो LHS x आएगा, सेम लॉजिक से RHS भी x ही आएगा. तो जब ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन हो रही है कि देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी ऊपर वाली पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे उसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ले रहा है. अब माइनस का क्या मतलब है? माइनस का, उप्स, ये क्या हो गया, माइनस का कोई मतलब नहीं है. अपन ने ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज माइनस, दैट्स ऑल. तो अगर मैं बोलूं a माइनस ये वाला, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं, तो मैंने कुछ नहीं, यहाँ -1 मल्टीप्लाई किया और फिर a + b किया, तो a प्लस की जगह माइनस हो गया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाई, और नीचे 1 -2 हो जाएगा, वो 1 -2 हो गया. ऐसे ही हमने इसको लिखा तो इसकी वैल्यू भी x बनेगी, बाय द सेम लॉजिक इसकी वैल्यू भी x बनेगी, इसलिए हमेशा इक्वल होगा. समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर सर्टेन large number of ratios are given, right? Certain large number of ratios are given, and then you find out the ratios, corresponding values का सम या डिफरेंस निकाल के रेशियो निकालोगे, तो उसका जो रेशियो बनेगा वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर बनेगा. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मैं फिजिकल एग्जांपल लेके समझा देता हूं. मान लेते हैं मेरे पास, मैंने कहा 1/2 इज इक्वल टू 2/4, या 2/4 नहीं लेते हैं, 3/6 लेते हैं ताकि डिफरेंट हो जाए. हम इसको 3/6 लिख सकते हैं, इसको हम 4/8 कर सकते हैं, इसको हम 5/10 कर सकते हैं, तभी तो इक्वल होगा. या इसको एक और 6/12. अब हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों को ले लिया अपन ने और इन दोनों को ले लिया. अब इनको ऐड कर लेते हैं, मान लो 3 + 5 किया और नीचे 6 + 10 किया. अब आप इसका रेशियो देखो, 8/16 आ गया.
which is same as 1/2, which is equal to the original value. अब आप चाहे तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा. अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 - 5 बनेगा, 6 - 10 बनेगा, ये -2 -4 बनेगा, तो रिजल्ट वापस 1/2 आ जाएगा. तो ये आपको समझ में आएगा. तो हम कई सारी क्वेश्चंस इसके ऊपर हम आराम से थोड़े से इजीली हैंडल कर सकते हैं इसको देखते हुए. ठीक है, तो ये हमारा रेशियो proportion, basically this is what we are trying to study. So far it is known as a proportion. ठीक है. इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है variation, right? So what is the variation, वो समझते हैं, and what are the kind of questions that we may come across, वो समझते हैं. Variation का मतलब होता है change. So there are two types of changes. What are these? One is known as direct variation and the other is known as inverse variation. ठीक है, एक क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है और दूसरा इनवर्स वेरिएशन होता है. तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन होता है if one value increases the other value also increases. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एक चीज आपने बढ़ाई तो दूसरी चीज भी बढ़ गई, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन. और अगर एक चीज कम करी और दूसरी चीज भी कम हो गई, ये क्या होगा? ये भी डायरेक्ट ही होगा. एक चीज बढ़ाई दूसरी चीज बढ़ी, डायरेक्ट. एक चीज कम करी दूसरी चीज कम करी, ये भी डायरेक्ट है. एग्जाम्पल के तौर पे हम डायरेक्ट ले सकते हैं. मान लो हमने कहा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. मतलब क्या है? एज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज फिक्स्ड. मान लेते हैं टाइम फिक्स है, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं 2 ही घंटे गाड़ी चलाऊंगा, यानी टाइम फिक्स है. इफ यू आर ट्रैवलिंग विद मोर स्पीड यू विल कवर मोर डिस्टेंस. इफ यू आर ट्रैवलिंग विद लेस स्पीड यू विल कवर लेस डिस्टेंस. Other way also true. If you have to carry more distance and the time is fixed, you will have to drive at faster pace. Now, if you have to drive for 4 hours only and you have to cover less distance, you will drive at a slower pace. So everything else being constant, D is directly proportional to S. Means if D increases, S needs to be increased. If D decreases, S needs to be decreased. That is known as direct variation. यहां तक बात समझ में आती? ऐसे ही एक चीज होती है जिसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, which means if it is represented in this fashion, which means if A is increasing then B must decrease, if A is decreasing then B must increase. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एज्यूमिंग स्पीड इज कांस्टेंट. यानी अपने सोच रखा है भाई 60 km/h की स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी है. अब मुझे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो क्या करना? तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ओके, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया. तो तुमने भी लिख दिया, लिखा है नहीं लिखा? चलो अच्छी बात है. सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. Speed is inversely proportional to time. Let's say the distance is fixed. We need to travel from Hisar to Delhi. The distance is fixed. Now, if you have to travel in lesser time, what do you need to do? Increase the speed. And if you have so much of time, then you will decrease the speed. Similarly, if you're driving at a faster pace, then the time taken to reach a destination will be reducing. And if you're driving at a slower speed, then the time taken to reach the destination will increase. So you are seeing the relationship is inverse. You understand this? Now, these are fundamentally two types of variations. One is direct and one is inverse variation. Now, this is how it is represented. But the point is, how are we interested and what kind of questions do we expect in this scenario? So one of the questions, let us just start, then I'll explain you slightly more. Let's say the question asked to us is, A square is directly proportional to B cube. A square is directly proportional to B cube. And then it says, when A is equal to 2, B is equal to 3. When A is equal to 3, then B is equal to how much? Let us say this is the question. So how do we approach this question? Now, in this case, A square is proportional to B square. Now, why is this proportionality used? It is basically for derivation of formulas. These variations are basically an observation, and this observation after doing certain experiments in lab become formula.
Now, for simplest understanding for you guys would be, let's say, let's say we want to find out the circumference of a circle. You know the formula of circumference. What is the formula? So you said C is equal to 2 pi. Now, how do you think some mathematician in his stage would have found this formula? We study a lot of formula in maths and physics. H is equal to lambda nu, G is equal to mr capital G in by mass of the planet divided by r square. ये सब 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत साइंस में. किसी ने तो फॉर्मूला बनाया होगा, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. कुछ याद है? PV is equal to nRT. ये सब फॉर्मूले हैं, लेकिन कहाँ से आए? हम तो फॉर्मूला बोल देते हैं क्योंकि रट्टा मारना. कहाँ से आता है? कोई तो बनाता होगा. और वो कैसे बनाता है, वो उसका एसेंस है. ये कैसे बनाता है मैं बताता हूँ आपको. कोई भी फॉर्मूला ऐसे बनाया जा सकता है. हमें पता है सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. अब ये पता कैसे? ये किसने बताया? ये इसने बताया कि हमने एक सर्कल बनाया, फिर हमने एक दूसरा सर्कल बनाया, फिर हमने मान लेते हैं एक तीसरा छोटा सा. अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है, अगर सर्कमफ्रेंस बड़ा है तो डाया बड़ा दिख रहा है, और सर्कमफ्रेंस छोटा है तो डाया छोटा दिख रहा है. सर्कमफ्रेंस और बड़ा है तो डाया और बड़ा दिख रहा है. अब ये कोई बताएगा नहीं, ये देखना पड़ेगा. It is known as observation. So you observe something which is happening on the society, you observe something happening on the planet. So you observe. So this observation is recorded as proportion. It is just an observation. From here we know कि circumference बढ़ा देंगे तो डाया बढ़ जाएगा, circumference कम कर देंगे डाया कम हो जाएगा. या फिर आप सोचो मेरे को बड़ा circumference, बड़ा डाया लूंगा तो बड़ा सर्कल बनेगा, छोटा डाया लूंगा तो छोटा सर्कल. देख के पता लगता है. लेकिन ये बात नहीं पता लगती कि सर्कमफ्रेंस अगर मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया तो डाया कितना होगा, या डाया मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा. क्यों नहीं पता? बिकॉज इट इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन. सो दिस ऑब्जर्वेशन नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू अ फॉर्मूला बाय फाइंडिंग आउट व्हाट यू नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. किसी भी वेरिएशन को जब फॉर्मूला बनाना होता है, चेंज को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है, तो इक्वल टू इक्वेशन बनानी पड़ती है. इक्वेशन बनाने के लिए मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहां से आएगा? ये तो हमने सिर्फ एक थ्योरी बात है कि भाई इक्वल टू लगाने के लिए कुछ एक वेरिएबल डाल दिया हमने ताकि वो बैलेंस हो जाए. तो वो आएगा कहां से? वो यहां से आएगा कि हम जब इसको बनाएंगे तो मेरे को पता चलेगा K इज इक्वल टू C अपॉन D. लिखा जा सकता है. ये मैथमेटिकल है कि भाई कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड में तो राइट में आके डिवाइड हो जाएगी. नाउ वी आर यूजिंग दैट मैथ्स हियर. सो व्हाट डू वी डू? टू फाइंड K आई नीड टू नो C एंड आई आल्सो नीड टू नो D. अगर मुझे C और D दोनों पता लग जाए तो मेरा K आंसर निकल जाएगा, फिर तो दिक्कत नहीं है. तो C और D कैसे पता लगेगा? ये पता लगता है एक्सपेरिमेंट से. जो साइंटिस्ट लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ये है. अब एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि मान लो हमने एक सर्कल बना लिया, तो अब सर्कल मान लो हमने एक ऐसा सर्कल कुछ फिजिकली बना लिया, फिर उसका हम क्या करेंगे? फिजिकल मेजरमेंट करेंगे. मान लो धागे से एक सर्कल बनाया, तो अगर हम धागे को खींच के ऐसे नाप सकते हैं फीते से प्रैक्टिकली. मान लो आपने इसको नापा और आपको ये पता चला कि 44 सेंटीमीटर आया. कैसे किया? फिजिकली फीता लेके आपने नापा. समझ में आ रहा है? और फिर ये जो लाइन बनाई आपने, इसको बोला सर्कम, और इसको भी फीता लेके आपने नापा. ठीक है, नापा तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया. फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया, फिर आपने रेशियो निकाला. अच्छा, तो आपने कहा आया 44/14. आपने लिख लिया, रिकॉर्डिंग कर ली. फिर आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक दूसरा सर्कल लेते हैं. तो आपने एक छोटा सर्कल ले लिया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया. उसमें आपने इसको फीते से नापा. आपने देखा कि ये तो 11 सेंटीमीटर है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि ये तो 11 सेंटीमीटर है. फिर इसको नापा, आपने डायामीटर को नापा, आपने इसको नापा तो ये देखा 3.5 से, इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है, फिर आपने एक और सर्कल ले लिया. ठीक है, ये मान लेते हैं आपने नापा, आपको 5.5 आ गया. ठीक है, ये आपका 1.75 आ गया. ऐसे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, खूब सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और रेशियो बनाई. हर एक्सपेरिमेंट का जो रेशियो की वैल्यू है वो सेम आ रही है, 22/7. इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 22/7. इसको 4 से कर देंगे 22/7. ऐसे आप कई सारे करते हो, खूब सारे एक्सपेरिमेंट, और आप देखते हो कि जो C/D जिसको हमने K बोला है, इट मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यू.
अगर हमें कुछ ऐसा मिल गया, सारे एक्सपेरिमेंट करके सारी वैल्यूज को पुटा, एक कांस्टेंट मिल गया, यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिला 22/7, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट। इसको हमने एक नाम दे दिया पाई का, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पाई। अब मेरा जो फॉर्मूला है C/D इज इक्वल टू पाई, एंड देयरफॉर C इज इक्वल टू पाई इंटू D। बट वी नो द डायामीटर इज नथिंग बट ट्वाइस द रेडियस, नॉमेनक्लेचर ही चेंज करना है, तो हमने इसको लिख दिया 2r। तो हमने क्या किया, 2 और पाई दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने 2 पाई को एक तरफ बनाया और r को एक तरफ लिख दिया, और हमारा फॉर्मूला बन गया 2 पाई r। अब अगर कोई आपको r दे देगा तो c निकाल लोगे, c दे देगा तो r निकाल लोगे। दैट इज हाउ यू जनरेट फॉर्मूला। ये इसका एसेंस है वेरिएशन का। हमारे किस काम आएगा, हमें ये समझना है। हमने अभी अभी देखा कि यहां पे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b था, तो इसका मतलब अगर मुझे इक्वेशन बनानी तो a इज इक्वल टू k अपॉन k भी करना पड़ेगा, और फिर मुझे k निकालने के लिए a/b करना पड़ेगा, और फिर मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कुछ इनपुट वैल्यू मिलेगी फिजिकल A1, मुझे पता नहीं क्या है, और कुछ मिलेगी मेरे को B1 मिलेगी। फिर एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें मान लो मैंने ये वैल्यू चेंज करी तो ये वैल्यू भी बदल, जैसे मैंने छोटा सर्कल लिया बड़ा सर्कल लिया, ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट चेंज करेंगे तो A1 और B1 बदलता जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, K तो सेम ही है। इसका मतलब मेरे पास क्या आना चाहिए, A1/B1 शुड बी इक्वल टू A2/B2। अब मैं इसमें क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको नीचे इसको ऊपर, तो ये बनेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे डायगोनली ऊपर नीचे लाने को, ऑल्टरनेंडो। किताब होगा तो मैं बताऊंगा। सो ऑल्टरनेंडो, तो ये चीज आपको किताब में लिखी हुई मिलेगी। क्या लिखी हुई मिलेगी, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन, ऐसा लिखेगा, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ मिलेगा, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। फॉर इनवर्स वेरिएशन क्या मिलेगा, ये किसके लिए है, फॉर ये किसके लिए, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। और फॉर इनवर्स वेरिएशन क्या होगा, सेम लॉजिक से, A1/A2 इज इक्वल टू B2/B1। ये किसके लिए है, मेरा इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, ये याद रखना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन मेरा, अब इसमें क्या है कि इसको याद करने से मुझे K को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने K इसलिए सिखाया कि जब कुछ मुश्किल क्वेश्चन आएंगे ना, वहां K निकालना पड़ेगा आपको। मैं दोनों बताऊंगा आपको, ये डायरेक्ट शॉर्टकट्स टाइप निकल जाएगा, लेकिन कुछ जब डिफिकल्ट, कुछ और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो वो उसमें K हमें निकालना पड़ सकता है, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको सिखा रहा हूं। तो फिलहाल आपको एक चीज समझनी है, डायरेक्ट वेरिएशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, फॉर इनवर्स वेरिएशन A1/A2 इज इक्वल टू B2/B1, उल्टा। ठीक है, याद रहेगा ये। For direct variation A1/A2 is equal to B1/B2. For inverse variation A1/A2 is equal to B2/B1. Should not be a problem. Now, how do we handle this question? I am having A square is directly proportional to B cube. इसका मतलब है A is equal to, इसका मतलब है अगर मैं इसको, ये डायरेक्ट है इनवर्स है, डायरेक्ट, तो मैं इसको लिखूंगा इसको लिखूंगा मैं A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब आप ये मत बोलना सर A1/A2 जो B1/B2 होगा, बट यहाँ पे वो तब होगा जब A इज प्रोपोर्शनल टू B था। अब A स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू B क्यूब, तो मेरा क्या बनेगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू B1 क्यूब अपॉन B2 क्यूब। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है। अगर हमने इसको A1 माना तो ये B1 बनेगा, क्योंकि ये हमको गिवन है, और इसको A2 मानेंगे तो ये B2 बनेगा। अब कुछ नहीं करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। A1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू B1 क्यूब यानी 3 का क्यूब इज इक्वल टू B2 का क्यूब। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो हमारे पास आएगा B2 क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, यही बनेगा।
तो B2 की वैल्यू बनेगी क्यूब रूट ऑफ 81/4। सिर्फ ये कर लो, अदरवाइज हम 3 बाहर भी निकाल सकते हैं। 4, हाँ 243 कोई बात नहीं। हाँ 249, 81 4 4 243 का क्यूब रूट, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे, 3 बाहर निकाल लेते हैं और क्यूब रूट ऑफ 9/4 कर देते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर क्यूब, ये भी पॉसिबल, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9/4, ये हमारा डायरेक्ट। इसमें हमें के निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने आपको बताया। आर वी मेकिंग सेंस हियर? ओके, एक हम इनवर्स का भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा A1 स्क्वायर या A1 is proportional to B square. A is proportional to B square. When A is equal to 4, B is equal to 5, A is equal to 6, B is equal to how much? कैसे करोगे इसको? A is equal to 4, B is equal to 5, A is equal to 6, B is equal to how much? कितना आया? 10√1। चलो देखते हैं। Okay, so we may solve this. A1 upon A2 is equal to B2 square upon B1 square. So this is A1, B1, A2, B2. So A1 is 4, A2 is 6, B1 square is 5 का square and B2 का square is sorry उल्टा करना है। B2 square is unknown to me, B1 square is 5 का square. So B2 square is equal to 25 4s are 100 divided by 6. So you may want to take B2 as 10 by √6. क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये हमारा इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होता है। ऐसे ही कुछ चीजें होती है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन क्या मतलब है? आपको जी का फॉर्मूला याद है ग्रेविटेशनल पुल? नहीं याद है, ये होता था ग्रेविटेशनल पुल इज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये कैसे बनाया होगा किसी ने? ये ऐसे बनाया होगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया ग्रेविटेशनल पुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना बड़ा प्लैनेट उतना ज्यादा पुल। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ग्रेविटेशनल पुल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर जाते जाते हो ग्रेविटेशनल पुल तेजी से कम होता है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो जी जो है एम पे भी डिपेंड कर रहा है और 1/r² पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों बातों पे डिपेंड कर रहा है। वी कैन ऑलवेज से जी इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू 1/r²। इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेरिएशन, दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है, ज्वाइंट हो गया। समझ में आ रहा है? वहां से आया होगा। तो हम ये कहते हैं अगर A is proportional to B when C is constant, A is proportional to C when B is constant, that means A is proportional to B into C। इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेरिएशन, ये भी ज्वाइंट वेरिएशन है। हम ये भी कह सकते थे A is directly proportional to B and A is inversely proportional to C, तो हम क्या बोलेंगे? A is proportional to B into 1/C which is same as B/C। समझ में आ रहा है? अगर हम बोलें A is inversely proportional to B and A is inversely proportional to C, तो हम क्या बोलेंगे? A is inversely proportional to 1/B into 1/C। इसको ज्वाइंट वेरिएशन बोलते हैं।
जब दो चीजों पे कोई चीज डिपेंड होती है तो दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक डायरेक्ट है एक इनवर्स है तो एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे आ जाएगा, और दोनों इनवर्स है तो दोनों नीचे आ जाएंगे, जैसे नजर आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ये होता है ज्वाइंट वेरिएशन। फिर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पार्ट वेरिएशन। ठीक है, पार्ट वेरिएशन क्या होता है? जब कोई चीज पार्टली किसी चीज पे डिपेंडेंट होती है और पार्टली किसी और चीज पे डिपेंडेंट होती है तो उसको बोलते हैं पार्ट वेरिएशन। एग्जांपल दे सकते हो पार्ट वेरिएशन का? यहाँ आएगी नहीं, रेंज नहीं आएगी, ऊपर चला जा। अच्छा, पार्ट वेरिएशन मतलब कोई एक चीज पार्शली किसी चीज पे डिपेंडेंट और पार्शली किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो। एग्जांपल बताओ कोई ऐसा पार्ट वेरिएशन का। क्या? नहीं, ज्वाइंट वेरिएशन तो नहीं हुआ। उसमें क्या था, दोनों चीजों पे पूरा पूरा डिपेंड कर रहा था। दूसरी चीज कौन, जैसे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ टाइम और कुछ, दोनों पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। स्पीड बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, मतलब डिस्टेंस और स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस और टाइम की बात करें टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली, वो ज्वाइंट वेरिएशन है। लेकिन अब हम पार्ट वेरिएशन बोल रहे हैं, कोई चीज पार्टली किसी चीज पे डिपेंडेंट और पार्टली किसी और चीज पे डिपेंडेंट है। कैसा है, कुछ एग्जांपल हो सकता है? कॉमर्स वाले कितने बताओ। एक्सपेंडिचर, किसी कंपनी की प्रोडक्शन का एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंडेंट है? दो हिस्सों में टूट सकता है एक्सपेंडिचर, किस में टूटेगा? हाँ, कॉस्टिंग किस पे जाती है? रॉ मटेरियल क्या है, डायरेक्ट है क्या है, कैसा कॉस्ट है? डायरेक्ट मतलब रॉ मटेरियल कैसा कॉस्ट है? हम लोग डायरेक्ट तो मैंने गलती से बोल दिया, बट कुछ और भी है। देखो, दो तरह के खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी काम में। वेरी गुड, दो तरह के खर्चे हैं। कौन कौन से? एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अब कोई भी हम आइटम या कोई भी चीज बनाते हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है वो पार्शियली फिक्स्ड होती है और पार्शियली डिपेंडेंट होती है इनपुट कॉस्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हम ये क्लास रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास को रन करने का कुछ खर्चा है, वो पार्टली क्या है, फिक्स्ड, और पार्टली क्या है, डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेरिएबल। जैसे फिक्स्ड मतलब मान लो हम पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है। अब यहाँ चाहे वो तो चलेगा ही, 2 बच्चे बैठे होते तो भी ये लगना था, 5 बच्चे बैठे होते तो भी लगना था, और 50 बैठे होते तो भी लगना था। दैट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास। दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द सेकंड कॉस्ट, वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट्स उनका ज्यादा स्टडी मटेरियल मंगवाना है, ज्यादा टैक्सेस भरनी है, हेड ऑफिस की ज्यादा रॉयल्टी जाएगी। कम बच्चे होंगे तो कम टैक्स भरना है, कम रॉयल्टी जाएगी, कम मटेरियल मंगाना है। सो एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो वो पार्टली फिक्स्ड है, इसलिए मैं K1 लिख देता हूं, और पार्टली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, इसलिए मैं N लिख देता हूं। इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, इस रियलिटी को। व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज द एक्सपेंडिचर. So this reality needs to be expressed as a mathematical equation. And how do we express it? We express it in this fashion कि expenditure is partly constant K1 and partly directly depends on number of students. Directly क्यों? Number of students बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, और number of students कम होंगे तो खर्चा कम होगा। तो how do I read this statement? Expenditure is partly constant and partly directly depends upon N. समझ में आ रहा है कैसे रीड करें? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं A इज इक्वल टू K1B प्लस K2C, हाउ डू यू रीड दिस? A इज पार्टली कांस्टेंट, का B पे डिपेंडेंट है। पार्टली कैसा डिपेंडेंट है? पार्टली तो है डायरेक्टली। सो A इज पार्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन B and very good. So A is partly directly dependent on B and partly directly dependent on C. That is the meaning of this equation. K1 K2 बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, A is proportional to B लिखते थे,
तो उसको हटाने के लिए जब इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो ये लगाना पड़ता है। अब चूंकि दो क्यों लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ए जो कुछ हद तक बी पे डिपेंडेंट है और कुछ हद तक सी पे डिपेंडेंट है, कितनी है वो उसको निकालने के लिए K1 K2 पता होना चाहिए, तभी इक्वेशन बनेगा। क्या बेटा? ना, हमें पता नहीं ना कितनी हद तक डिपेंडेंट है। अब जैसे कि मान लो फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है, अगर यहाँ 50 बच्चे बैठे होते तो पर बच्चा फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, 5 बच्चे बैठे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट 5 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो चेंज हो जाएगा कांस्टेंट। इसको, इसका क्या मतलब है, A इज इक्वल टू K1B प्लस K2 बाई सी। A is partly directly dependent on B and partly inversely dependent on B। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। अब ज्यादातर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं, A इज इक्वल टू K1 प्लस K2B, इस पे आता है ज्यादातर क्वेश्चन। और इसके अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लेते हैं कि 100 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो पर बच्चा जो खर्चा आता है मान लेते हैं 2500 आता है, और कहता है कि अगर 150 बच्चे रहते हैं ना तो पर बच्चा खर्चा आता है मान लेते हैं 3000 रुपए। तो अगर वो कहेगा अगर 1700 बच्चे हॉस्टल में है तो बताओ कितना पर बच्चा कितना खर्चा आएगा, ये क्वेश्चन है। प्रोवाइडेड द एक्सपेंडिचर इज पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब लॉजिकल बात है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या कोई पीजी में रहता है, तो अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो मेस का खर्चा है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो मेस में जो बंदे रखे हैं, कुक रखा है, वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल है कि भाई ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो पर बच्चा ऑन एन एवरेज जो कॉस्टिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब लोगों में डिवाइड हो गई। आ रही बात समझ में? तो अब उसने हमें ये दे दिया, तो चूंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट प्रॉब्लम कि कितना खर्चा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन बनेगी, पहले टोटल खर्चा कितना बनेगा 100 बच्चों का, 100 इंटू 2500। ये खर्चा क्या है? पार्टली कांस्टेंट है, और पार्टली कितने बच्चों पे खर्चा आ रहा है? 100 बच्चों पे। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? मैंने 1500 लिख दिया, ज्यादा ही हो गया, इतने बच्चे थोड़ा होते हैं। 150 इंटू पर बच्चा खर्चा है 3000, ये किसके आएगा? पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हो। फिर हमें निकालना क्या है? 170। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें ये नहीं पता, 170 इंटू एक्स, ये टोटल खर्चा है। दिस विल बी पार्टली कांस्टेंट K1 जो यहां सॉल्व करेंगे, प्लस K2 इंटू 170। और K1 और K2 कहां से निकलेगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करके K1 K2 निकलेगा, और हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, तब जाके हमारा आंसर मिलेगा। दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इन द टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मैंने आपको ये बताए हैं ये देखा नहीं है, बट थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं पता होता जनरली। ठीक है, बट अब तुम्हें पता है, तो अगर कुछ आ जाएगा तो हम इक्वेशन बना के K1 K2 को ही सॉल्व करना है, और कुछ। अब K1 K2 सॉल्व करना हमने पिछली क्लास में सीखा था, दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। होप यू नो दैट, सीखा था ना? नहीं? हाँ भाई, समझ में आया? If you are able to understand, this will take care of your basic understanding of ratio, proportions, and variations. You should be able to handle majority of the questions in the exercise that is given. And if you look at previous exams also, you will be able to handle on questions on this topic. Should not be a problem. समझ में आई बात? बताओ, कोई confusion, question, clarification, confession? नहीं, confession तो यही पढ़ते नहीं है? कौन सा? नहीं, ये समझाने में ऐसे लग रहा है। और जनरली जब इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आता है तो इसके साथ दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको।
और ये बड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी हमने बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करी है, और ये थोड़ा सा बड़ा भी है क्योंकि आपको 100 इंटू 2500 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जनरली एग्जामिनेशन में ये भी नहीं आता, वो दे देता है, टोटल खर्चा पहले बता देता है, तो एक ये 2 कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम में कि बोर्ड की तरह आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, सारे करने, आधे ही करने हैं आपने, या 60-65% करने हैं, सही करने हैं। हाँ, गलती कम करनी है, नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें, और उसमें नंबर स्टेप्स के कोई नंबर नहीं मिल लेते हैं आपको, तो जितना मिनिमम लिखो, जितना मेंटली करो वो लिख दो, तो वहां टाइम बचता है हमारा। ठीक है, चलो मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा और ये नोट्स भी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। हाँ जी, ऑनलाइन शिल्पा एंड प्रीत, एनी क्वेश्चन क्वेरीज? No, sir. अंडरस्टूड प्रॉपरली? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, देन दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।